आज यहाँ फेडरेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कर्नाटक चैप्टर की तरफ से बेंगलोर मेट्रो इलाके के स्कूलों के लिए स्कूल लीडर्स अवार्ड्स प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें कर्नाटक के वज़ीर आला के मुशीर जनाब नसीर अहमद ने स्कूल मैनेजमेंट के ज़िम्मेदारों में अवार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद तनवीर अहमद, जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर साद बेलगामी, डॉक्टर ताहा मतीन, जामिया उल उलूम अरबिक कॉलेज के प्रिंसिपल मौलाना मकसूद इमरान वगैरह ने खिताब किया। Trust and serving the MS Palya Vidayaranapura community. This institution is being applauded. School, proudly supported by Raza Educational and Social Group of institutions and proudly managed by Right Foundation Trust, located in Hegde Nagar, Yahlanta, Hubli, and personalized student support. We are proud to present this award to Trillium Educational Trust and serving the KR Puram Devasandra community for its steadfast accept the award. Wisdom International School, proudly run by kindly step forward to accept this award. Mount Crest Academy, run by Bilal Education Society and Balak English School, managed by Balak Education Society and located in a nurturing and an inclusive school culture. local development, we are proud to present this award to Faris Academy. I request Ms. Reshma Iqbal to come forward and receive the award. Based education and service to the community. I request Mr. Ashraf Ali Khan to come forward and receive their award. Foundation of the Blind, Umangul Noor for the Blind, is an Mr. Muhammad Kamruddin to kindly accept the award. HSIS Government Urdu Model Primary School and significant investment in students' learning and infrastructure. We are This award. I call upon Mr. Kuvenda Vai Hamzatullah to come up and receive the award. Stafford Public High School, proudly managed by We are proud to present this award to Mr. Syed Fahad on behalf of Stafford Public High School. Zenith Academy, proudly run by Request Ms. Ume Salma from Zenith Academy Campus 1 to come forward and receive the award, and Mr. Sadrullah from Campus 2 to come forward. The Crescent English High School, proudly managed by the Crescent Education and Welfare Trust. Award for sustained Ms. Hajira Batul to kindly come forward and accept the award. Elite Bangalore International School, run by SR Educational Charitable Trust, is looking to come forward and receive the award. Bright Brains for Community-Based Quality Education. This award is being conferred to them for its impactful start, community focus, and promising plans. Samar International Islamic School, located in Thani-Sandra Main Road in RK Hegde Nagar. It is known for its sustained commitment to excellence, values. Crescent Enclave, Chikkabandwara, Bangalore, is being conferred this award for its continued Educational Society and located in Rashad Nagar, Bangalore, for its commitment to shaping well-rounded young citizens and its sustained dedication to student welfare. For its sustained contribution to education, social upliftment, and empowerment through accessible learning. We are proud to present this award to Bismillah Education Trust on behalf of BET institutions. I humbly request a representative of Bismillah Education Trust to come forward and take the award. Brainy Stars International Holistic Montessori and School is located in Jayanagar 4th Block. It's known for its outstanding contribution to nurturing the whole child, mind, heart, body and spirit. We are proud to present this award to Brainy Stars International Holistic Montessori and School. The authorized representative is requested to step up and receive the award. Kushal Nagar.
for its demonstrated progress, strong community impact, and dedication to nurturing well-rounded learners. Wood International School for Kushal Nagar branch and Mr. Munawar Pasha is kindly requested to step up to accept the award on behalf of Thanisandra branch. Lily Rose, located in B. Educational Society and located at ELR Bande, Kawal by Sandra, Bangalore, for his dedication to well-rounded education and student empowerment. We are proud to present this award to Mr. Munawar Pasha. Sir, kindly step forward to receive your award. Florida English High School, run by the Exxon Educational Charitable Trust. It is known for their steady focus on nurturing young leaders, young learners, both academically and morally. We are proud to present this award to Mr. Mir Uwaisullah from Florida English. Nagwara, Bangalore. This award is being covered. Moving ahead, I request Mr. Harun Basha and Mr. Syed Atif. Representing institution today, Secretary Mr. Ejaz Pasha and Ms. Nazia Hussain. So I invite them to receive the award. Mr. Ejaz Pasha. Has long supported girls' education, nurturing young minds with a strong learning and character values. So congratulations on your continuous commitment to excellence. Okay, may the representative please come forward to receive the award. It's my pleasure to present the FEMI School Leaders Award to Bekon English High School, Shampur. Located in Govindpura, headed by Mohammad Maas, this distinguished institution reflects a strong commitment to academic excellence when providing the nurture. Ferris Educational Institution, Bharti Nagar, led by Mohammad Tabarak. This institution is recognized for fostering students' growth through strong academics and meaningful moral. School Leadership Award to Global Public School, Bapuji Nagar, Mysore Road, led by Dr. Abdul Rahim. This award and college. It's an honor to present FEMI School Leadership Award for 2026. The Grace International School and College, located in Kawal by Sandra, Bangalore, headed. The school promotes a supportive environment that strengthens both academic achievement, community-centered education that truly inspires. Please join in welcoming the representative of Inspire Public School to accept this prestige. Next one. Ikhra International School, in congratulating Mrs. Ahmed as she come forward to receive this award. Come forward to receive the award. Award to Manahil English High School, located in Kilana Garden and headed by Mrs. Sarah B. This esteemed institution is recognized for its strong commitment to quality education, moral values and community engagement. Under Dr. Farida's guidance, the school has fostered a learning environment that supports academic excellence and character development. Please join me in welcoming Dr. Farida Rahmatullah on stage. If we do properly, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त हम अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर भेजने की कोशिश कर सकते हैं. उससे काफ़ी हद तक मसले हल हो सकते हैं. उसके बाद जो भी है, आप लोगों ने जो बात रखी है कि आप लोगों को मिनिस्टर से मधुबंगार पास से हो या हमारे वेलफेयर मिनिस्टर, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब ज़मीर साहब हो या चीफ मिनिस्टर साहब हो, इंशाल्लाह आप लोग बताएं कब आप लोग आएंगे, तो इंशाल्लाह उसकी कोशिश होगी. ज़मीर साहब के हद तक वो अभी हुबली में उनका 26 तारीख को एक प्रोग्राम है जहाँ पर तकरीबन श्रम बोर्ड के हवाले कोई 43,000 हाउसेस देने का एक प्रोग्राम है, तो उसमें हुबली में है, वो 24 तक वापस नहीं आए. वो प्रोग्राम के बाद ही वापस आएंगे. मधु बंगारा पास से मैं बात करूँगा, अगर इज अवेलेबल कल, अगर है कल तो संडे है, तो इंशाल्लाह अगर आप हैं नेक्स्ट वीक तो इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट फिक्स करके मैं आपको इतना करूँगा. नसीम चंदन पास के साथ मैं आप लोगों का मशहूर हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाकर आप लोगों ने गुजारी की और उसके साथ साथ जो इशूज़ हैं उसको मेरे सामने रखा है. तो इंशाल्लाह जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करूँगा. अल्लाह हाफ़िज़. माशाअल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा. फेमी का ये इस साल पहला प्रोग्राम था यहाँ पे,
फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का एक मीट है, जिसमें सभी स्कूल्स जो माइनॉरिटीज़ के रन करते हैं उनको बुला के हौसला अफजाई का एक प्रोग्राम था। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें डिस्कस हुई, जैसे कि आरआर रिन्यूअल के बारे में है और फायर एंड सेफ्टी का बड़ा मसला है। और इस चीज़ों के लिए ख़ास करके हम लोग नसीर अहमद साहब जो आए थे उनको एक मेमोरेंडम दिया है। और इस वक्त की एक अहम ज़रूरी ये है कि स्कूल चलाने के लिए थोड़ा सा आसानियाँ पैदा किया जाए, ताकि छोटे मोटे स्कूल जो है जो अब कुछ उसमें कमियां हैं उसको ज़रा सीरियसली ना देखते हुए थोड़ा सा स्कूल चलाने की सहूलत करके दिया जाए। तो यही एक मकसद था हमारा। और जितने भी स्कूल्स यहाँ पे आए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा सर्विस कर रहे हैं। मैं भी टुमकुर से हूँ, ग्लोबल शाहीन कॉलेज टुमकुर से, एक शाहीन का एक शाख है टुमकुर का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी लगभग 500 लड़कियाँ पढ़ते हैं और हमारे यहाँ LKG से लेकर डिग्री तक का इंतज़ाम है। हम ये चाहते हैं कि हर छोटे बड़े कस्बे में इस तरह के हमारे अपने इंस्टीट्यूशन हो, ताकि हमारे बच्चों को अपनी तहज़ीब के साथ में हम एक अच्छी तालीम दें। और क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान। मैं रूबी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं प्रिंसिपल हूँ। इसमें जो आज जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जो मीटिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जोर दिया गया है कि सब कौम मिलकर माइनॉरिटी आगे बढ़े, माइनॉरिटी स्कूल को डेवलप करे, माइनॉरिटी एजुकेशन क्वालिटी को डेवलप करे। इसके लिए मैं हम लोग बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज़ किया है। वेरी मच हैप्पी। और हम भी आगे जाके अपने फर्म के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए मेहनत करेंगे। सेक्रेटरी जी भाई, आज इस मीटिंग में वही बताया गया कि हम सबको एक साथ आके जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, मसले हैं स्कूलिंग में, बच्चों की पढ़ाई में, उसके बारे में मिलकर डिस्कस करें और अपनी लेजिस्लेशन अपनी पार्टीज़ के सामने रखें, तो जिसमें एजुकेशन में आसानी हो। तो ये मीटिंग में हमको वही बताया गया कि कैसे हम लोग सब चीज़ें आगे रख सकते हैं, कैसे मसले सब आगे रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर अमल होगा और हम भी ज़रूर अपने जो भी है परेशानियाँ वो आगे ला के रखेंगे और इंशाल्लाह इसलिए इससे आसानी होगी बहुत सारे स्कूलों में और बहुत सारे एजुकेशन को हेल्प होगी इसकी ज़रूर। लेकिन आज का फंक्शन जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा। इससे ये करने की वजह से क्या है तो ये जो इदारे चलाते हैं उनकी हिम्मत अफजा होती है। और जो यहाँ जो बहुत सारे जो डिस्कशन हुए फायर सेफ्टी आरआर के बारे में, ये सिर्फ यहाँ यहीं पर नहीं छोड़ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर, एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर प्रेशर करना, जो आरआर बनाने के वास्ते जो फायर सेफ्टी स्टेबिलिटी, बिल्डिंग स्टेबिलिटी, उसके बाद है तुम्हारा लैंड कन्वर्शन, ये सारे चीज़ों से जो छोटे छोटे इदारों को बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है, उन्हें चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं ज़िम्मेदारान हजरात से और इस मीडिया के ज़रिए मैं गवर्नमेंट से और एजुकेशन मिनिस्टर से ये अपील करता हूँ, जो कुछ भी आज ये तुमने फायर सेफ्टी और स्टेबिलिटी, बिल्डिंग स्टेबिलिटी और लैंड कन्वर्शन, ऐसे जो कुछ भी बहुत सारे मुश्किलात के जो कानून डाले हैं, इसमें थोड़ा आसान करें और स्कूल चलाने में आसान करके दें। लेकिन NEP 2020 के कई प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पड़ रहा है, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोटोकॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, वो आप जानते हैं। तो पहला जो बड़ा चैलेंज है वो रेगुलेशन और पॉलिसीज एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में IT के प्रोविजंस आप पर लागू होते हैं, इनकम टैक्स के, PF का डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ा हुआ है, GST भी आपके पीछे पड़ी हुई है। तो ये चैलेंजेस हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पहले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना एक स्टेटस की बात थी, लेकिन अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना थ्रेट और चैलेंजेस को लेकर सामने आ रहा है।
तो आपको उसी एतबार से तैयार होना है, मजबूत होना है, मैदान छोड़ना नहीं है, मैदान में डटे रहना है, खिदमत करना है, बेहतर अंदाज में खिदमत करना है। सो दिस इज चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2 सोसाइटी का चैलेंज। सोसाइटी में अब इंस्टीट्यूशन से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं, बच्चों की भी एक्सपेक्टेशन, स्टूडेंट के एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गए हैं। तो इन एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है and learn from each other and inshallah pray that our maqsad, our children will become the flag bearers of aman and insaf and taqwa in the future. आरआर के लिए 66 कंडीशन आप डालें, क्या प्राइवेट स्कूल वाले शराब की दुकान चला रहे हैं क्या? क्यों करें आप ये? तो अनएडेड स्कूल एसोसिएशन एक एसोसिएशन है जिसका राज्य अध्यक्ष रेवंत सिद्धप्पा जलाते बोल के बीदर से ही है, मेरी उसकी 40 साल की दोस्ती है। तो वो लोग हंगामा करने से वो तो गवर्नमेंट क्या की 8 मेंबर्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की अभी 15 दिन पहले, 3 हफ्ते पहले बेलगाम में 19 दिसंबर को जो अडजोन थी। 8 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी के कन्वीनर श्री पुट्टन्ना जी को बनाए, जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलुरु के MLC हैं। तो वो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स के आरआर के लिए क्या रिलैक्सेशन हो सकता है, गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशन है। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है, मैं उसकी सताइश करता हूँ फिल्मी की जानिब से। और ये मेमोरेंडम में सबसे अहम पॉइंट जो है एजुकेशन केस में वो आरआर है। आरआर के सिलसिले में रिलैक्सेशन है और माइनॉरिटीज़ के लिए माइनॉरिटी के लिए 2-3 चीज़ें हैं। फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री पे आ जाता हूँ मैं, उसमें माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट है, स्कॉलरशिप्स का है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स को मोर देन 1000 करोड़ तक बढ़ाएं। फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स जो पुराने हैं, जो नॉन हैं और नए भी हैं, उनको माइनॉरिटी का डेवलपमेंट उस वक्त तक नहीं होगा जबकि एजुकेशनली भी वो एम्पावर्ड ना हो। तो इसके लिए अगर उनको लैंड नहीं है तो Subscribe, click on the bell. Link is in description.